अभी हम क्योंकि 2 सीरीज पहले से हमने ऑस्ट्रेलिया की बातें शुरू कर दी थी, मुझे लग रहा था कि क्रिकेट जो है ना, इफ यू स्टार्ट एक्चुअली क्रॉसिंग द ब्रिज बिफोर यू रीच द ब्रिज, इट कम्स बैक एंड बाइट्स यू. एंड दिस New Zealand team just lost in Sri Lanka, and this time they didn't have in Kane Williamson. In spite of that, their spinners were better than us. उनके बैट्समैन जो हैं, they applied on these pitches, जो कि alien है उनके लिए, because they grow up in grass and seamy conditions. The way they applied themselves, India should learn from this. I think complacency, overconfidence. I think जो कानपुर में हम 1.5 दिन में जीते हैं ना मैच बांग्लादेश से, उससे थोड़ी सी गलत फहमी होगी, और उसके बाद एक मैच चलिए हार गए. पर दिस इज टू बी a collective responsibility of the leadership group, the team management, starting from the coach, captain, and the senior players. You can't actually lay the blame on the youngsters or maybe the bowlers. I think the bowlers, if we have Ashwin and Jadeja, and still we lose to New Zealand, and their spinners bowl better than us. So I think there has to be a thorough introspection. And you were talking about beating Australia again in Australia. You can forget about that. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस समय सॉलिड है, आप थोड़े से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे. आई थिंक मे बी इन द लॉन्ग रन इज गुड बिकॉज सेलेक्टर्स विल बी फोर्स टू लुक एट स्पेशलाइज्ड टेस्ट प्लेयर्स. आई थिंक क्या हो गया कि दिस अगली डर्टी बैटिंग जो होती है टेस्ट मैच की, वो भूल गए. आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो हैं वो सोचते हैं जिनकी नेचुरल गेम ऐसी रही है, चेतेश्वर पुजारा जैसी, अजिंक्य रहाणे जैसी, वो उनको भी लगता है कि अगर हम ऐसे खेलेंगे तो वी विल नॉट गेट कॉन्ट्रैक्ट्स, दे विल मिस आउट ऑन द मनी. And so just to keeping up with the Joneses, they try and play like what is required by IPL franchisees so that they can be bought. And I think where is the key? I think the BCCI should have, if you're serious about Test cricket, I think BCCI should identify players, and they have to actually compensate the players so that these specialized players who are in the mold of Test cricket don't get overexcited and try to straddle the formats, and then we lose out on the players. क्योंकि ऐसी बैटिंग जो होती है टेस्ट मैच की, वो मिस कर गए. बड़े प्लेयर्स से तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो इतने सालों से खेल रहे हैं, विराट से, रोहित से, कि बिकॉज दे आर स्टार्स, दे शुड बी एबल टू मैनेज, बिकॉज दे आर स्पेशल. बट स्टिल दे डिडंट डू दैट. इनिंग आफ्टर इनिंग 6 इनिंग्स हो गए ना, 1-2 इनिंग से चलता है. सो दिस ब्रेन फेड, कलेक्टिव ब्रेन फेड, जस्ट हाराकिरी, प्लेयर्स कमिंग एंड just trying to hit out. So the baseball was a flavor of the season. England won few matches. England won actually more than they lost. But Indian teams, after they won that match against Bangladesh, thought they can carry on doing that. And now you see that 3-0. This will actually hurt a lot for a long time. बहुत रियली इनका होता है कि होम सीजन इनका अच्छा नहीं गया. पहली बार हमने इनको इतना वनरेबल देखा. क्या ये अपकमिंग बीजीटी इज अ मेक और ब्रेक सीरीज फॉर देम? क्या अगर इफ दे डोंट परफॉर्म इन बीजीटी शुड इंडिया मूव? आई थिंक वो देखिए, नोबडी कैन एक्चुअली पुट अ फिंगर ऑन देम. आई थिंक दे नो, इतने बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने इतना खेला, उनको पता जाएगा. आई थिंक प्लेयर्स नो व्हेन द टाइम इज देयर. सो आई मीन very hard to give it up, but these players I think expect a lot from Virat and Rohit, and I'm sure once they realize that they are not actually carrying their weight, they will themselves go. We don't have to actually, some players carry on dragging. I can identify those players, I don't want to name them, but I am sure that Virat and Rohit, once they know that they are not commanding that presence, commanding that status in the team, and they're not carrying their weight, they will themselves go. They will not put this onus on selectors. But when until they feel that they can still overcome, and I'm sure they've still got a lot of cricket in them, and I think Indian team needs them. We can't just have all the youngsters going. We need Virat and Rohit to show up and bring their persona, bring their status, bring their presence in this team and lead. And I just don't expect Rohit to just lead. I think Virat is also a big part of the leadership group. And I think Rohit also, takes a lot out of Virat. When he sees Virat, Rohit's decision making, Rohit's approach to the game, approach to situations is different. And इस पे हम आ गए हम WTC स्टैंडिंग्स. अब ऑस्ट्रेलिया में हमें कुछ बहुत बड़ा करना होगा. अप्रोच क्या रहनी चाहिए? बिकॉज वी आर इन दैट पोजीशन कि वी आर अ वुंडेड लायन. देखिए, मुझे लग रहा है फिर अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट WTC. जरूरत ही नहीं है. आप WTC गए हैं, 2 बार बुरी तरह हारे हैं, क्योंकि अगेन वो वहां पहुंचते हैं, वो एक WTC का जो ऑरा है अभी तक बना नहीं है. आपने पहुंचे हैं, जब 2 बार हार चुके हैं,
ये अभी स्टिल द जूरी स्टिल आउट कि WTC इतनी इंपॉर्टेंट है, सम प्लेयर्स और जो उनका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो है कैलकुलेशन है वो भी थोड़ी सी वेग है. मुझे पूछेंगे, मुझे नहीं पता. आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज टू गो टू ऑस्ट्रेलिया. फर्स्ट स्टेप इज टू रीच, प्ले द फर्स्ट टेस्ट मैच एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर. डोंट थिंक अबाउट WTC. अभी तो आपने हार के गए हैं, अभी तो पहले अपनी इज्जत दोबारा से खड़ी करें, अपनी जो साख गिरी है उसको थोड़ा सा जमाएं, क्योंकि इतना धक्का लगा एकदम से. जो कलेक्टिवली आपने किया था इतने सालों से, वो इन 3 मैचेस ने धराशायी कर दिया. अब दूसरी टीम्स देखिए, आपकी जो रेटिंग थी, जिस तरह से आपको दिखते थे, जिस तरह से आपके ऑ में थे, दिस इज ऑल ओवर नाउ. न्यूजीलैंड टीम विद देयर स्पिनर्स कम टू इंडिया, थ्रैश अस ऑन आवर ओन पिचेस विद विराट, रोहित, एवरीबडी देयर, अश्विन देयर, जडेजा देयर. इम्पॉसिबल. कोई पूछेगा तो बोलेंगे कि क्या पता ये हो ही ना. मैं मान नहीं सकता उसको, पर एनीवे हुआ है. फुल मार्क्स टू न्यूजीलैंड. शुभमन गिल, do you think he's the ideal number 3 or replacement for Pujara? यार देखिए, शुभमन गिल इज अ गुड प्लेयर. आई थिंक बट वही वाली प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया आपको, समटाइम्स यू गेट ओवर इन योर ऑरा, बिकॉज प्लेयर पीपल एक्सपेक्ट यू टू प्ले सर्टन वे. दे सी शुभमन गिल तो छक्के मारता. अब टेस्ट मैचेस में क्या है, वो क्या हम्बल पाई ईट करेगा, क्योंकि उस पर कैपेसिटी होनी चाहिए. तो वो प्लेयर्स रेडी करें कि आप में गेम तो है, पर आप सिर नीचे करके अपनी थोड़ी सी, क्योंकि जो साख को नीचे हो जाए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है. जो टेस्ट क्रिकेट में है ही ऐसे, अगर आप सर्वाइव करेंगे एक सेशन तो आप बेटर प्लेयर हैं. मैचेस में काफी इंप्रेस करा. एंड ऑन दी अदर हैंड रविचंद्रन अश्विन की सीरीज इस बारी कुछ खास नहीं हुई. तो फॉर BGT सुंदर ओवर अश्विन? नहीं, I will not actually comment. I mean, we need Ashwin there and he's a great player. सुंदर आ गया तो एक हमारे पास कुशन हो गया, मुझे लगता है. एंड वॉशिंगटन सुंदर इज अ वेरी गुड बैट्समैन ऑल्सो. आई थिंक सो वी हैव गॉट मैन टू मैन resources, which is good for Indian team. But the problem is the seam bowling. Who's going to be supporting Bumrah? That is a big question there. And batting जिस तरह से हुई है, आई एम श्योर कि ऐसा ये पूरा सपना चलता नहीं रहेगा. आई एम एक्सपेक्टिंग जायसवाल इज अ ब्रिलियंट गाय. सो वी गॉट दिस प्लेयर्स इन स्पाइट ऑफ दैट. सो इज इज नॉट जेलिंग एंड आई होप दैट द बिग प्लेयर्स विल कम टू द पार्टी. विराट से मुझे बहुत उम्मीद है. मुझे लगता है कि विराट विल बी अगेन द स्पाइन ऑफ द टीम. इन स्पाइट ऑफ दिस परफॉर्मेंस, I still feel that Virat and Rohit at the top, because Rohit, what he does is he just punches and then deflates the bowling, you know. But deflates the bowling का मतलब ये नहीं कि आप आउट ही हो जाए. अगर एक सेशन खेल देंगे, नया बॉल बचाएंगे, तो वो भी डिफ्लेट करेगा. So they expect Rohit to play short. अगर रोहित शॉट नहीं खेलेगा तो that will perplex them. I think that is the way they should actually counter Australia to play against their nature, against the skin. कौन से आपके बैटर्स होंगे? या देखिए, मैंने बोला है बुमराह को बचा के रखें. सिराज थोड़ा सा ऑफ द बॉल है, बट वी गॉट द प्लेयर्स. तो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट सीम बॉलिंग है वो इस समय अप इन द एयर है. आई थिंक वो थोड़ा सा बिल्कुल इस सीरीज के बाद, इससे पहले इंजरीज को लेके 4-5 नए प्लेयर्स आए हैं, पर अभी क्या रेडी है ऑस्ट्रेलिया की ये मुझे पता नहीं है. तो आई होप दैट वी जेल एंड द वे वी डिड लास्ट टाइम. बट बैटिंग को अगर वहां पे रन डालेंगे बोर्ड पे तभी होगा. अब बॉलर्स पे छोड़ देंगे तो नहीं होगा. कोई स्पिनिंग तो विकेट्स मिलनी नहीं है. पर नेथन लायन एनी पिचेस पे विकेट्स लेते हैं. तो आई एम एक्सपेक्टिंग अश्विन एंड जडेजा टू डू द जॉब देयर.